tell me, anyone any idea regarding what is NLP, why we use NLP? Anyone? लाइक सही आंसर है, गलत आंसर कुछ भी देंगे चलेगा, बट जो भी हो आप बोल सकते हैं, लाइक आपको जो लगे कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये होता है. क्लियर? एनीवन? व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? It's basically बात करते हैं. अशोक पाल, योर वॉइस नॉट कमिंग क्लियर. योर वॉइस अच्छे से नहीं आ रही है, लाइक बफरिंग कर रही है. आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम. Sir, यस, वास्ते करें. NLP help computers to understand and work with human language. Yes, That's why we use NLP. yes, good. Anyone? Yes, Sir, वास्ते NLP करें. is how computer learns to understand, read, and respond human language, like voice assistant, chatbot, autocorrect. So NLP is a field of artificial intelligence that, with the help of computational linguistics, and it helps machine to read, analyze, and understand and generate human language in a meaningful and a useful way that is understandable to humans also. What do you understand by linguistics? Sir, in linguistics, we cover our general way in which we conduct, in which we talk to each other. Linguistic means language. So linguistic Anyone? means how the language are used. Okay, okay, बता दिया. Yes. Anyone? Sir, can we say the NLP used for to understand machine human sentiments through NLP? It will possible. Can we say that? Yes, tell me one thing. Like Google Translate, यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Use हो रहा है. Yes, sir. It means it is the application of natural language processing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. But how? Yes, please आंसर देके म्यूट कर लिया करिए. ओके. It convert our sentiment in different language. Can we? ओके ओके, कोई बात नहीं अभिषेक. यस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. क्लियर? Natural language processing is a subfield of computer science, information and artificial intelligence concerned with the interaction between computer and human language. If anyone asks what is natural language processing, then you direct say the interaction between computer and human natural language or human language. That is called natural language processing. Clear? No need to explain like this is the definition of natural language processing. Natural language processing is interaction between computers and human. लाइक कंप्यूटर की लैंग्वेज को ह्यूमन में कन्वर्ट करना है, ह्यूमन की लैंग्वेज को कंप्यूटर में कन्वर्ट करना. दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन सिंपल लैंग्वेज. क्लियर? Yes, sir. यस. लाइक इफ एनी इंटरव्यूअर आस्क, आप डेफिनेशन बताएंगे तो इट मीन समझेगा कि आपको रटी हुई है. क्लियर? आपने उसको रट लिया है, बट नहीं. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग is the interaction between computers and human natural language processing. Human natural language. That is called natural language processing. This is the simple definition. Clear? Everyone will ask, like, what is natural language processing? Interaction between computer and human language. That is called natural language processing. Clear? Yes, sir. In Yes, sir. particular, how to program computer to process and analyze large amount of natural language data. Like हम इसको कमेंट स्लाइड में देखेंगे किस टाइप से वर्क करता है, किस टाइप से डेटा सेट को एनालाइज करता है, किस टाइप से टेक्स्ट को एनालाइज करता है, किस टाइप से मैसेज को एनालाइज करता है, किस टाइप से स्टोरी को एनालाइज करता है. क्लियर? सम चैलेंजेस आल्सो कमिंग, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. दैट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई. क्लियर? लाइक चैट जीपीटी, फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉम्प्ट देन जनरेट द कंटेंट. It means ChatGPT also applications of natural language processing. Clear? ChatGPT में भी आपका natural language processing use होता है. It means आप जब prompt देते हैं तो first उस prompt को वो समझता है, then जो आपने prompt दिया उस prompt के हिसाब से आपको content generate करके देता है through natural language processing. Clear? Please write down this definition, everyone. Fast.
लाइक कोई भी कुछ पढ़ाया करे, फर्स्ट राइट डाउन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लियर? ये आपको पीपीटी शेयर कर देंगे, बट हमेशा लिखा भी करो, क्योंकि जो लिखोगे वही याद रहता है। When everyone done this, please inform me. Okay? जब कंप्लीट हो जाए तब एक बार बता देना सर हो गया। वेट 1 मिनट। Clear? Natural language processing, interaction between computers and human language. That is called natural language processing. Clear? Some challenges, for Yes, example, speech recognition, natural language understanding, and natural language generation. Natural language understanding means if you given any prompt, first ChatGPT understand your prompt, then generate the content. Clear? Everyone done this or not? Yes, sir. Yes, sir. Done. Done, sir. Sir, one question, sir. Okay. So, like it is written here, challenges in natural language processing frequently involve speech recognition. Like ये इसको involve किया गया, तो ये challenge में कैसे आया, मतलब ये See, कुछ whenever आपने एक पेज का उसको प्रॉम्प्ट दिया, वो फर्स्ट किस में कन्वर्ट करेगा? टोकन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो उसको जो टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एनएलपी के लिए। क्लियर? दैट्स व्हाई हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। क्लियर? जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की पाइपलाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर? वेट फॉर फ्यू मिनट्स। Okay. ओके क्लास? Okay, sir. Yes, sir. एवरीवन डन दिस और नॉट? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. Done. Okay. See, it helps develop to organize knowledge for performing tasks such as translation, automatic summarization, name entity recognition, speech recognition, relationship extraction and topic segmentation. Clear? तीनों को मिला कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन लैंग्वेज, तीनों को मिलकर बनता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. प्लीज ड्रॉ दिस आल्सो राइट नाउ. I think everyone use who said I am on the way. कौन बोला चैट में आई एम ऑन द वे? सर मैंने अंकिता. ओके अंकिता, ओके. अंकिता अटेंडेंस जब लेंगे अटेंडेंस के बाद रुक जाना, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. क्लियर? Done, sir. एवरीवन डन दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो आपने यहाँ बेसिक देखा है लाइक ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक समराइजेशन, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, लाइक स्पीच. आई थिंक एवरीवन, एक मिनट, आई थिंक एवरीवन यूज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन. Hey, Vedia. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. See, translation automatically converting text or speech from one language to another language. For example, English sentence into French. I think इसका एक ऐप भी है that is called Translate. Clear? It is applications of natural language processing. क्लियर? यहाँ पे भी आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज हुआ है ट्रांसलेट में. जो आप ट्रांसलेट का ऐप आप लोग यूज करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू फ्रेंच और एनी लैंग्वेज.
ऑटोमेटिक समराइजेशन। क्लियर? ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे सी। फर्स्ट सपोज रोबोट में आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड द यूजर स्पीच। सपोज सी गिवन एनी प्रॉम्प्ट, लाइक इसने कुछ बोला इसको, क्लियर? तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इसको अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंडिंग द यूजर स्पीच, देन जनरेट रिस्पॉन्डिंग टू द यूजर ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंड कंटेंट। जो इसने समझा रोबोट ने, उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन, दिस इज द most important part of NLP. Like many questions, every interviewer asks, what are the applications of natural language processing? First, applications of natural language processing. First, smart assistants like Alexa, like Siri. It means smart assistant focus on building system that automatically answer the question asked by human in natural language processing. I think everyone use Google Mini or Alexa, Siri, clear? Or any idea regarding this smart assistants? Anyone? Nadeem, Sajid Ali? सर लाइक गूगल में हम कुछ भी पूछते हैं तो उसको प्रोनाउंस करने के लिए गूगल का प्रोनाउंस करके देता है, वो भी शायद स्मार्ट असिस्टेंट आएगा। यस, लाइक आप उसमें कुछ भी स्पीच करते हैं, वो आपको हमेशा आंसर करता है। इट मींस यस फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन जनरेट एंड देन रिस्पॉन्ड। Yes, I have Alexa. Yes, I have Alexa. यस सर, जैसे कि चैटबॉट भी हो गया सर। yes, chatbot is also applications of natural language processing. See, chatbot, it is also applications of natural language processing. Write down both, प्लीज। साथ में इसके डेफिनेशन भी लिखते जाना, क्योंकि यही आपका एनएलपी का पार्ट इंपोर्टेंट है। जो भी इंपोर्टेंट होगा मैं आपको उसको राइट डाउन कराऊंगा, और जो इंपोर्टेंट नहीं है उसको स्लाइड में ही रहेगा। क्लियर? यस सर। यस किशोर, राइट। Then spam detection. Spam detection is used to detect unwanted emails getting to a user inbox. If mail is spam, then go to one parameter that is called in your email called spam. Suppose आपका कोई मेल जो है स्पैम आया हुआ है, आपके ईमेल में आप लोगों ने देखा होगा एक पैरामीटर रहता है दैट इज कॉल्ड स्पैम का पैरामीटर। सपोज वो लाइक फ्रॉड से रिलेटेड है तो वो हमेशा स्पैम में जाएगा, वो कभी भी इनबॉक्स में, यूजर इनबॉक्स में नहीं जाएगा। इट मींस वहां पे भी आपका मशीन लर्निंग मॉडल एंड एनएलपी यूज होता है। क्लियर? आपने देखो काफी टाइम ऐसा होगा कि जो आपको मेल सपोज किसी कंपनी से आया, लाइक इंटर्नशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो भी मेल आपका स्पैम में जा सकता है। व्हेन यू अप्लाई एनी regarding internship or any job, always check spam also. Clear? Inbox as well as spam, both. Okay class? यस Okay. Like many cases होते हैं, like no problem. Yes, done everyone? Yes, sir. Okay. थर्ड, सेंटिमेंट एनालिसिस। लाइक इसमें हम टुमारो प्रोजेक्ट करेंगे, वन प्रोजेक्ट, क्लियर, यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सेंटिमेंट एनालिसिस इज आल्सो नोन एज ओपिनियन माइनिंग। इट इज यूज्ड ऑन द वेब टू एनालाइज द एटीट्यूड, बिहेवियर एंड इमोशनल स्टेट of the sender, like which type of emotional blackmail or which type of attitude, which type of behavior. Clear? This application implemented through step by assigning the value to the use sentiment analysis. लाइक आप किसी को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे कभी मैसेज करते हो, लाइक आपको हंसी आ रही है, उसमें हंसने वाला इमोजी शेयर करते हो। क्लियर? वहां पे आपके एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं। Yes, sir. यहाँ पे भी आपका नेचुरल So your voice is breaking.
Yes, screen visible or not? Visible. It's visible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Like first application, smart assistant. Second, spam detection. Third, sentiment analysis. Fourth, language translation. Yes, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? So now it is okay. आ रही सर बीच बीच में आके रुक बीच में जाए. ब्रेक हो रही है. Yes, please जब भी ब्रेक हो जाए प्लीज ओके इन्फॉर्म. So again it's breaking now. So you are not audible right now. Sir, you are having a network issue. ये क्या यार नेट नहीं चल रहा है. मेरा भाई नहीं चल रहा. थैंक यू सो मच. Hello. हाँ हाँ बोलो. बोलो भैया बोलो. बोलो भैया. यस वॉइस मेरी वॉइस आ रही है. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. ओके. यस Hello. क्लियर. हाँ बोलो. सेंटिमेंट एनालिसिस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन. बोलो भाई. यहाँ तक सभी का हो गया. हाँ. यस एवरीवन Yes, sir. और नॉट. Yes, sir. अभी मीटिंग में बाद में बात Sir. करेंगे. देन स्पेलिंग करेक्शन. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड एमएस वर्ड. क्लियर. एमएस पावर पॉइंट. वहां पे भी आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज हो रहा है. इट मीन्स इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सिक्स्थ, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यूज फॉर कन्वर्टिंग स्पोकन वर्ड्स इनटू टेक्स्ट. आप कुछ भी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को ऑन करके आप कुछ भी स्पीच करते हैं वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? टेक्स्ट के फॉर्म में. इट मीन्स वहां पे भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. Sir, your screen not. Oh, What? it's loading. Yes. Yes, class. No sir, it's visible. It's visible, sir. Okay, okay. Yes, please fast. Write down spelling correction and speech recognition both.
सी मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ, सपोज आपने स्पेलिंग करेक्शन बोला तो आपको साथ में याद रहेगा, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, क्लियर, इस टाइप से आप बता पाएंगे। सपोज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन तो आप बता पाएंगे हम कहाँ पे यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वॉइस असिस्टेंट में, क्लियर। Yes, everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. Next, chatbot and information extraction. Clear? Like chatbot, implementing the chatbot is one of the important applications of NLP. It is used by many companies to provide the customer chat service. Like whenever you used Flipkart, clear, आप लोग कभी Flipkart यूज करते हैं आई थिंक, तो आपको सपोज यू ऑर्डर लाइक शूज और क्लॉथ्स एनीथिंग, सम लाइक उसमें कुछ डैमेज आया, क्लियर, तो आप वहाँ पे हेल्प में जाके क्लिक करते हैं। वहाँ पे हेल्प में क्लिक करने के बाद आपको वहाँ मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, लाइक योर ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक डैमेज, ऑल दीज थिंग्स, डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं। देन आप उस पैरामीटर को जैसे सेलेक्ट करते जाते हैं, देन उस टाइप से आपको आंसर, क्वेश्चन और आंसर आते जाते हैं। दैट इज कॉल्ड चैटबॉट, क्लियर। इट मीन्स मैनी लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑल दीज थिंग्स प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपका चैटबॉट यूज हो रहा है, क्लियर। Yes, sir. Okay. Like information extraction is one of the most important applications of NLP. It is used for extracting structured information from unstructured or semi-structured machine readable documents. Like आप किसी भी फॉर्म में उसको डॉक्यूमेंट को देते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको मशीन रीड कर लेता है। इट मीन्स इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कभी आपने चैट जीपीटी में यूज किया होगा, लाइक आप किसी भी टाइप का प्रॉम्प्ट दे देते हैं, लाइक स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग, बट व्हेनेवर चैट जीपीटी जब जनरेट करता है आपका कंटेंट, तो वो हमेशा राइट स्पेलिंग वहां पे सही रहेंगे। इट मीन्स वहां पे भी एनएलपी यूज हो रहा है, क्लियर। यस सर, यस इट मीन्स सर। इट इज हमसे एप्लीकेशन जैसे ऑफ, कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो सर ऐसा गलत गलत स्पेलिंग लिख के बोल देते हैं, वो सही करके सब अपने यस समझ जाता है वो। यस, सर तो बट इसमें एक इन केस डाउट ऑफ था सर। मशीन लर्निंग, सर यस यस हासन, सर इसमें एक डाउट ये था सर, इसमें हम लोग डेटा फीड करते हैं या फिर ये उसने खुद ही से ऑब्जर्व किया है? लाइक इसमें जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन है, ये सर, क्योंकि जैसे कि हमसे कभी कभी टाइपो एरर्स हो जाते हैं, तो उस केस में डेटा फीड करा है हमने या फिर मतलब इंजीनियर्स ने, या फिर वो खुद नहीं से लिसन, वो Yes, चैट जो आपका चैट जीपीटी और जो अदर है ना, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है, इतना खतरनाक जो आपने कंटेंट दिया उसको। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग कभी गलती करते हैं तो भी वो आंसर सही देता है, मतलब जो हम लोग पूछ रहे होते हैं उसके बाद भी वो हाँ, आंसर सही देता है, तो वही पूछ रहा था सर, वो डेटा हम लोग फीड करते हैं या फिर वो खुद से समझता है? खुद से समझता है। दैट्स व्हाई एनएलपी यहाँ पे देखा ना, स्पेलिंग करेक्शन, इट मींस स्पेलिंग करेक्शन में आपके एनएलपी ने करेक्ट सही कर दिया। देन नेक्स्ट में आपका स्मार्ट असिस्टेंट, ये भी आपका सही कर दिया। इट मींस आपने जो बोला और जो लिखा, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किससे मिलकर बनता है, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन जनरेट। नेचुरल लैंग्वेज समझने में भी हेल्प करता है, देन कंटेंट को जनरेट करने में भी हेल्प करता है। डिफरेंट मॉडल्स भी यूज होते हैं, लाइक आपका डीप लर्निंग का LSTM मॉडल, एनकोडर, ट्रांसफॉर्मर, इन केस ऑफ चैट जीपीटी, क्लियर। एक एनएलपी पर यूज नहीं हो रहा है, वहां पे आपका ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है। आप जब ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव आई के ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टाइप का चैट जीपीटी का स्ट्रक्चर है, ओके क्लियर। सो यस डोंट सर, वरी, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, बट थोड़ा पेशेंस रखना। श्योर सर। ओके, yes everyone done this? Yes, sir. Okay, see, these are the applications of natural language processing, like speech transcription, neural machine translation, chatbot, question and answering, text summarization, image capturing, video capturing, clear. And in case of iPhone, Google, Amazon, all these things जहां पे आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज ना हो रहा हो, तो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट दिस।
डन सर। डन सर। Done, sir. Okay, everyone completed? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Like इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है यस सर। सर, यस सर, आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सर आ रहा है। क्लियर? क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में यूज हो रहा है। ये सर, यहाँ ये पे अब एप्लीकेशंस देख के हाँ लग रहा है इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस जो हैं इसके। Yes, हाँ, तो अभी आप आगे जब पढ़ेंगे डीप लर्निंग जनरेटिव एआई, तब आपको लगेगा कि चैट जीपीटी का किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, वहां पे कौन सी लाइब्रेरी यूज होता है, कौन सा मॉडल यूज होता है। क्लियर? अभी सर आप कितने दिन और हमें पढ़ाएंगे? जब तक आपका जनरेटिव एआई का सिलेबस खत्म नहीं होगा। सर मतलब कोई क्लियर? लगभग क्या 5 डेट मंथ्स रहेगी? लगेंगे, 5 मंथ्स पढ़ा देंगे। क्या हुआ हसन? सर वही पूछ रहा था कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लगेगा, आपने 5 मंथ्स बता दिया। लाइक 3 to 4 वीक्स मिनिमम। अच्छा तब तो सही है सर। क्लियर? डोंट वरी, अभी सर काफी आप लोग का पूरा डीप लर्निंग है। सर उसके बाद कोई मतलब ऑफिस वर्क भी सिखाएंगे कि मतलब खाली बस एक डीएल एमएल और डीएल और एनएलपी? प्रोजेक्ट भी तो कराएंगे आपको। अच्छा सर, और लाइक ऑफिस से रिलेटेड? ऑफिस से रिलेटेड वही, लाइक आपका जो मेन प्रोजेक्ट रहेगा ना, जो आपके ए सर्टिफिकेशन में लिख कर आएगा, वो अभी आपको प्रोजेक्ट मिला नहीं है। क्लियर? वो प्रोजेक्ट अच्छा वो आपको, आप पहले खुद ट्राई करेंगे, मैं खुद करवाऊंगा आपको। क्लियर? उस ओके। प्रोजेक्ट को आप Yes. अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। डोंट वरी। ओके ये सर निकिता थैंक यू मैम सर। देने वाली है लिस्ट। हाँ, वो अभी लिस्ट आ जाएगी लाइक आफ्टर 1 or 2 डेज में आपके पोर्टल में प्रोजेक्ट शो करने लगेंगे। डोंट वरी उसमें से। बट लिसन, जब मैं सेलेक्ट करने के लिए बोलूं, जब ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना। इफ आपने कोई सा प्रोजेक्ट गलत सेलेक्ट कर लेंगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद प्रोजेक्ट चेंज नहीं होगा। नहीं सर, हम लोग आपका मानेंगे। ओके। Okay, sir. यस, लाइक 1 or 2 डेज के अंदर मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको मशीन लर्निंग के इंटरव्यू क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, तो जिससे कि आप लोग मशीन लर्निंग की तैयारी साथ में करते चलना। क्लियर? यस। Sure, sir. ओके। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या एडवांटेज थे और क्या डिसएडवांटेज थे। क्लियर? वो हम अभी देखेंगे। एडवांटेज क्या था? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हेल्प यूजर टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एनी सब्जेक्ट एंड गेट अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स विद इन अ सेकंड। यस, ये तो हमने देखा है। इसका एप्लीकेशन क्या है? चैट जीपीटी, चैटबॉट, ऑल दीज थिंग्स। गूगल ट्रांसलेट, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो चैट जीपीटी से, आप विद इन अ सेकंड के अंदर आपको आउटपुट मिल जाता है। क्लियर? NLP offers exact answer to the question, means it does not offer unnecessary and unwanted information. आपने चैट जीपीटी में देखा होगा, लाइक जिस टाइप का आप प्रॉम्प्ट देंगे उस टाइप का आपको आंसर मिलता है। लाइक आपने यू रिटन देयर 6 लाइन, आई वांट 6 लाइन, देन आपको 6 लाइन का ही आउटपुट मिलेगा, 7 लाइन का आउटपुट नहीं मिलेगा। क्लियर? आपने लिखा आई वांट 5 पॉइंट्स, देन आपको 5 पॉइंट्स का ही आउटपुट मिलेगा। NLP हेल्प्स कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमंस इन देयर लैंग्वेज। यहाँ पे भी आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही यूज हो रही है, जिससे कि आप लैपटॉप की लैंग्वेज समझ पाते हैं, आपकी लैंग्वेज लैपटॉप समझ पाता है। दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट इज वेरी इफिशिएंट, इट इज वेरी टाइम इफिशिएंट। Most of the company use NLP to improve the efficiency of documentation, process accuracy of documentation, and identify the information from large data set. Yes, before 5 to 6 years. Like suppose आप लोग जब चैट जीपीटी मार्केट में नहीं आया था, NLP नहीं आया था। क्लियर? तो एक एनालिसिस करने के लिए आपको मिनिमम 1 or 2 मंथ्स चाहिए रहते थे, बट नाउ डेज विद इन आवर, विद इन 30 मिनट्स के अंदर आप विथ गुड एक्यूरेसी के साथ रिपोर्ट रेडी कर देते हैं, एंड आपका मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का कोई सा भी प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है थ्रू NLP एंड चैट जीपीटी। क्लियर? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द NLP मॉडल अ लॉट ऑफ डेटा एंड कंप्यूटेशन आर रिक्वायर्ड। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बहुत लाइक बिलियंस ऑफ मिलियन डेटा सेट चाहिए रहता है उसको मॉडल ट्रेन करने के लिए। आपने आई थिंक बिफोर 5 or 6 मंथ्स पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी, लाइक दोज हु आर स्टूडेंट्स और टीचर और एनीथिंग, जो चैट जीपीटी को थैंक यू बोलते थे, थैंक यू और सॉरी, चैट जीपीटी के ओनर ने एक नोटिस जारी किया था कि प्लीज थैंक यू एंड सॉरी चैट जीपीटी को मत प्रॉम्प्ट दिया करिए, क्योंकि उसको मॉडल ट्रेन होने के लिए भी बिलियंस ऑफ इपोक्स चलते हैं, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसका डेटा सेट भी यूज होता है, सब कुछ यूज होता है। जिसकी वजह से चैट जीपीटी ने मना किया था, चैट जीपीटी के ओनर ने, कि प्लीज थैंक यू एंड शुक्रिया और सॉरी मत बोला करिए। आप लोग चेक कर सकते हैं।
यस सर, बोला तो सॉल्ट सैम ऑल्टमैन ने। यस सर, यस सर, बोला। ऐसा क्यों बोला होगा हमने? यस सर बोला था। हाँ, बिकॉज दिस इज द डिसएडवांटेज। बट इन केस ऑफ मशीन लर्निंग आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन लर्निंग वर्क जितना अच्छे से वर्क करता है छोटे डेटा सेट पे ही वर्क करता है एज कंपेयर टू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जनरेटिव एआई, लाइक इनको डेटा सेट का हब माना जाता है। लाइक इनको इतना डेटा सेट चाहिए जैसे कि लार्ज डेटा सेट, जितना लार्ज डेटा सेट देंगे उतने बेस्ट एक्यूरेसी आएगी। क्लियर? लाइक स्मॉल डेटा सेट में आपकी एक्यूरेसी कम आएगी एज कंपेयर टू मशीन लर्निंग। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। दैट्स व्हाई मशीन लर्निंग लार्ज डेटा सेट पे अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। दैट्स व्हाई हमने डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज एंड जनरेटिव एआई को इंट्रोड्यूस किया। एंड नाउ डेज आफ्टर 1 ईयर आपका एक और टेक्नोलॉजी आने वाली, दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। अभी एजेंटिक एआई मार्केट में नहीं आई हुई है। क्लियर? देन सर प्लीज सर थोड़ा प्लीज एजेंटिक एआई बता देंगे, थोड़ा सा मतलब क्या बहुत एजेंटिक एआई अभी लाइक अभी थोड़ा टाइम दीजिए, अभी इस पे फोकस करते हैं। एजेंटिक एआई जब जनरेटिव एआई का आपका एंड आ जाएगा ना, तो उधर पे एक सेशन 2 घंटे का मैं एजेंटिक एआई के बारे में बता दूंगा। ठीक है अभिषेक तिवारी? ठीक सर। ओके, आपके सभी जो क्वेश्चंस मन में है सब सॉल्व होंगे, बट पेशेंस रखना और मेरी तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। लाइक आपका रिज्यूम भी क्रिएट करा दूंगा, किस टाइप से आपको रिज्यूम बनाना है जिससे कि कंपनी शॉर्टलिस्ट करें, सब कुछ करा दूंगा, बट पेशेंस रखना। क्लियर? लाइक जो अभी आप लोग रिज्यूम क्रिएट किए होंगे वो आपका कब रिजेक्ट हो जाता होगा आपको खुद पता नहीं होगा, बट जिस टाइप से Yes, मैं sir. आपका क्रिएट कराऊंगा, लाइक जिस टाइप से जो आईआईटी क्रिएट कराते हैं, मैं आपका उस प्लेटफॉर्म पे आपका क्रिएट कराऊंगा। आपको उस टाइप का एमएस वर्ड का मैं अपना खुद की सीवी शेयर करूंगा, वहां पे आप आईआईटी सिर्फ ओनली सिर्फ नाम चेंज करना और आपको लाइक जैसे आईआईटी के रिज्यूम रहते हैं सेम थिंग आपका क्रिएट हो जाएगा, बट पेशेंस। ओके Okay, sir. ओके। ओके सर। देन प्लीज रीड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फास्ट रीड। Yes, done. ओके अभिषेक। यस, आप लोग सभी लोग बीबीडीयू कॉलेज के ही हैं? सर I'm मैं from लप्पू BTN कॉलेज। यस, मैं लप्पू Sir, कॉलेज I'm सर। from BTN IIT. लाइक आवाज नहीं आ रही, प्लीज थोड़ा 1 by 1। अभिषेक आप कहाँ से हो? लप्पू कॉलेज, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ओके नहीं सर, मेरा उधर है, वो पंजाब में सर। भाई वो लप्पू एक तो यूनिवर्सिटी LPU से होता कौन है? है। हिमांशु विश्वकर्मा? Yes, sir. नहीं बस लप्पू है यस वो, हिमांशु, मैं भी लाइक आपके सतना से लवली ही हूँ। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यस सर, आई एम हियर आल्सो। यस, अब सतना में कहाँ पे रहते हो? सर मैं वहाँ हवाई पट्टी के पास, बस स्टैंड के पास, आदर्श नगर। ओके, एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑल्सो सभी हैं। ओ शिवम रजक, आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अभी वो था ना कॉन्वोकेशन, लाइक जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से है, लाइक वो अमन बत्रा सर बीटेक आए है थे और बीसीए है। सर, अमन बत्रा सर आए थे यहाँ। यस, अमन बत्रा सर थे और दो तीन लोग और थे। एक यूनिवर्सिटी से भी काफी हैं। यस, मेरा भी छोटा भाई एलपीयू से ही पढ़ा है, लाइक बीटेक सीएस। क्या सर, आप आईआईटी से भाई एलपीयू से? हाँ, ये तो उसका प्लेसमेंट लगा है, हिटाची में प्लेस्ड हुआ है, अभी कॉन्वोकेशन था उसका। हाँ तो सर आपने ट्रेंड किया होगा ना बैकग्राउंड में। यस, चलिए स्टार्ट करें, फिर बात यस करेंगे सर। क्लास के बाद। ओके, यस सर। और आपके लिए क्या है?
See, yes, we already learned what is natural language processing. Clear? And what are the various applications of natural language processing, and what is the advantage and disadvantage of natural language processing. Clear? Then we start नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्क, किस टाइप से आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वर्क करता है. क्लियर क्लास? फर्स्ट इसके आपके 10 to 12 स्टेप्स रहेंगे. क्लियर? फर्स्ट नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये आपके फर्स्ट अभी हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी. इसके बाद होगा आपका प्रोसेसिंग यहाँ से चालू. क्लियर? यहाँ से हाउ टू बिल्ड एनएलपी पाइपलाइन, हाउ टू वर्क नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ से होगा चालू. इसके पहले हम कंपोनेंट देख रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो आप लोग को मैंने बताया था. नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हेल्प द मशीन टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ह्यूमन लैंग्वेज बाय एक्सट्रैक्टिंग द मेटा डेटा फ्रॉम कंटेंट सच एज कीवर्ड्स, इमोशन, रिलेशन एंड सेमेंटिक रूल्स. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसके थ्रू आपकी लैंग्वेज को समझता है, लाइक आपके क्या कीवर्ड्स हैं, लाइक क्या इमोशंस हैं एंड क्या रिलेशंस हैं. क्लियर? And natural language understanding mainly used in business applications to understand the customer problem, like in Flipkart. Clear? Like Amazon, all these things जो like online platform है. आप कोई भी online platform use कीजिए, आप help के लिए like SBI बैंक, कोई सा भी बैंक हो, वहां पे आपका natural language processing यूज हो रहा है. फर्स्ट आपके कंटेंट को नेट समझता है, देन जनरेट करता है. सी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड प्लस एनएलजी, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. सी समीशन ऑफ NLG plus NLU, that is called natural language processing, like this. NLP, NLU plus NLG. Clear? First understand, then generate the content. Clear class? Okay? Yes, sir. NLG क्या है सर? Yes, sir. Natural NLG language generation. See this. Yes, sir. Natural language generation act as a translator that converts the computerized data into natural language representation. It mainly involve text planning, sentence planning and text realization. Clear? Like आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं तो फर्स्ट सेमेंटिक रूल्स क्या है क्या सर? कंपोनेंट ऑफ एनएलपी में सर लिखा हुआ है सेमेंटिक रूल्स क्या है? सेमेंटिक मतलब सेमेंटिक मीनिंग, कि उससे रिलेटेड मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है. क्लियर? ओके सर. ओके. देखिए आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दो को मिलकर दो को यूज करते हैं. फर्स्ट अंडरस्टैंड, आप चैट जीपीटी को, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, डीपसीक, आप किसी को भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो फर्स्ट उस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एनएलपी, देन जनरेट करते हैं थ्रू एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. क्लियर? हर स्किल्स और हर लाइक नेचुरल लैंग्वेज डीप लर्निंग सबका अलग अलग रोल होता है. क्लियर? अभी हम इसमें डिफरेंट मेथड ही पढ़ेंगे कि लाइक आप जो कंटेंट देते हैं वो पहले टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो टोकन के फॉर्म में वो फिर वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर देन एज इनपुट जाता है. बिकॉज एनी मशीन और एनी कंप्यूटर्स लर्न ओनली बाइनरी नंबर्स लाइक 0 और 1. क्लियर? आपको आई थिंक सभी को पता होगा, लाइक कंप्यूटर और एनी मशीन नॉट अंडरस्टैंड कैटेगोरिकल डेटा सेट, इट अंडरस्टैंड ओनली न्यूमेरिकल डेटा सेट, लाइक ओनली बाइनरी 0 और 1. क्लियर? यस सर. Okay. See, natural language generation is a computer writing language. Natural language understanding is a computer understanding the language, like Siri, Amazon, Alexa, all these things, applications of NLU. That is called natural language understand. Clear? Like Alexa, आप जिस टाइप का Alexa understand करेगा उस टाइप का आपने काफी बार देखा होगा, उस टाइप का आपको सॉन्ग थ्रू Alexa स्टार्ट हो जाता है. बट काफी बार ऐसा होता है कि वो आपका कंटेंट ही नहीं समझ पाता है, देन एलेक्सा सॉरी बोल देता है. आई थिंक सभी ने यूज किया होगा. यस सर. ओके. यस सर. Yes, sir. ओके आपको प्लीज. एग्जांपल दिखाऊं? अभी नहीं प्लीज, थोड़ा अभी बीच में नहीं. क्लियर? ओके हसन, क्या नाम? यस सर. यस सर, क्लियर. ओके. यस प्लीज. नेचुरल राइट डाउन नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. No need to written all these things, only written natural NLP equal to NLU plus NLG and write down the full form NLU, natural language understanding and natural language generation. See, written this natural language generation process is computer reading language. Write down 3. ये जो सर्कल में लिखा हुआ है सर्कल के अंदर इस ये लिख लीजिए, इट्स इनफ.
Yes, everyone done this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एंड ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, लाइक मैं आपको ये जब पीपीटी शेयर कर दूंगा आज, ठीक है ना? Sure, sir. Yes, बट sir. एक बार रीड कर लीजिए सभी लोग अभी इसको 2 मिनट में, ओके? अगर किसी को अभी डाउट हो तो पूछ सकता है, ओके? Sir, done. ओके, सभी को रीड कर लेने दीजिए। Yes, everyone done this? Yes, sir. Okay. Yes. Listen. आपकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी होती है, दैट इज कॉल्ड एनएलटीके। क्या होती है? एनएलटीके। जैसे आपकी नंपाई, पेंडास, मैटप्लॉट, सीबॉन, ये लाइब्रेरी होती है, सेम थिंग आपकी एनएलटीके की लाइब्रेरी होती है इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि हम यहाँ अभी देखेंगे। सी एनएलटीके, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। क्लियर? ये आपकी लाइब्रेरी है। या तो आप लाइब्रेरी को यूज कर लीजिए, अदरवाइज ये पूरी पाइपलाइन को यूज कीजिए। अब आप एक बात बताइए, सबसे सरल क्या है? इजी, पाइपलाइन यूज करना और लाइब्रेरी यूज करना। लाइब्रेरी। So library. यस, बट मेनली जो इंटरव्यू रहता है कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लियर? कि सपोज आपको सेंटीमेंट एनालिसिस से कोई सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप सेंटीमेंट एनालिसिस का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो आप मुझे एनएलपी की पाइपलाइन बताइए कि आप उसमें क्या क्या यूज करेंगे और किस टाइप से यूज करेंगे। क्लियर? तो वो हम अभी देखेंगे। यस, अभी आपकी यहाँ पे एनएलपी की पाइपलाइन स्टार्ट होती है। क्या होती है? एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की पाइपलाइन। क्लियर? या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की पाइपलाइन। तो फर्स्ट जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड सेंटेंस सेगमेंटेशन और सेंटेंस टोकनाइजेशन। क्लियर? इससे पहले आपको मैं एक वो पढ़ा दे रहा हूँ, टोकनाइजेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। इसके बाद आपको बहुत लाइक आसान लगेगा पढ़ना। वेट 1 मिनट। अच्छा, टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोकन? आप टोकन से क्या समझते हैं? Collection of something. व्हाट? The collection of something. नो, सी टोकन मींस सपोज ये आपका एक सेंटेंस दिया गया है। क्लियर? Alexa, लाइक stop it. आपका एक पैराग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है? एक पैराग्राफ। क्लियर? टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स, सच एज वर्ड tokens, subword token, character tokens, and sentence token. Clear? To prepare the text for further analysis in natural language processing task. Tokenization is a critical step So वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हुआ है, सबवर्ड टाइप का टोकनाइजेशन हुआ है और कैरेक्टर टाइप का टोकनाइजेशन हुआ है और
सेंटेंस टाइप का टोकनाइजेशन हुआ है। क्लियर। देन हमने क्या किया, यहाँ पे कौन से टाइप का, वर्ड टाइप का टोकनाइजेशन यूज हुआ है। इस टाइप वर्ड टोकनाइजेशन। क्लियर। तो देखिए चैट जीपीटी में भी सेम इसी टाइप से होता है। फर्स्ट आपने कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, वो टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किसके फॉर्म में, टोकन के फॉर्म में। लाइक आपने ये पूरा लाइन एक पैराग्राफ दिया, वो पहले फर्स्ट वर्ड जाएगा, देन सेकंड वर्ड जाएगा, देन थर्ड वर्ड जाएगा, देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। बट आपको इतना टाइमिंग, आपने देखा इतना टाइम नहीं लगता है। क्लियर। सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। फर्स्ट वन इज वर्ड टोकनाइजेशन। एवरी इंटरव्यूअर आस्क हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। आप लोग अभी कंपनी में बैठेंगे, आपको पता चलेगा, और लाइक आपके जो सीनियर्स हैं आप पूछ लीजिएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। फर्स्ट वर्ड टोकनाइजेशन, सेकंड सेंटेंस टोकनाइजेशन, थर्ड सपोज एक इंडिविजुअल करता है, लाइक दिया टोकनाइजेशन इज एन इंपोर्टेंट एनएलपी टास्क, देन यू अप्लाई वर्ड टोकनाइजेशन, then you apply word tokenization, then see tokenization is an important NLP task। आपको आउटपुट इस टाइप से मिला। क्लियर। तो चैट जीपीटी में भी यही होता है। ओके। देन सेंटेंस टोकनाइजेशन, सपोज आपने एक लाइन का कोई सेंटेंस दिया, अगर कहीं पे फुल स्टॉप है तो वो उसको अलग से ब्रेक कर देगा, देन नेक्स्ट कर देगा। सब वर्ड टोकनाइजेशन में क्या है, सपोज आपका नाम है अभिषेक, तो अभी को अलग ब्रेक कर देगा, शेख को अलग कर देगा। टोकन को अलग कर दिया, आइजेशन को अलग कर दिया। कैरेक्टर, सपोज आपका नाम है साजिद, तो यस अलग ब्रेक कर देगा, ए अलग ब्रेक कर देगा, जे अलग ब्रेक कर देगा, आई अलग कर देगा, डी अलग कर देगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। किस टाइप से, इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरी, आपकी इंपोर्ट एनएलटीके लाइक numpy pandas matplot, इंपोर्ट numpy एच एनपी, इंपोर्ट पीडीएच पीडी, हम इस टाइप से करते हैं ना। इंपोर्ट एनएलटीके, एनएलटीके द लाइब्रेरी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपकी एनएलटीके एक लाइब्रेरी है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होती है। इंपोर्ट एनएलटीके, yes please wait 1 minute, hello, yes yes बैच ले रहे हैं, ओके ओके क्लियर। देन सी इंपोर्ट एनएलटीके लाइब्रेरी, देन इंपोर्ट टोकनाइजेशन। विच टाइप ऑफ टोकनाइजेशन यू इंपोर्ट किया है, सेंटेंस टोकनाइजेशन। नदीम मेरी वॉइस आ रही है, प्लीज से यस और नो। यस सर, आ रही। ओके, हमने विच टाइप ऑफ टोकनाइजेशन यूज किया है यहाँ पे, सेंटेंस टोकनाइजेशन। देन से दिस इज योर इनपुट, आई लव एनएलपी, इट्स फैसिनेटिंग, सेंटेंस टोकनाइजेशन इज वेरी यूजफुल। देन आपने उसको प्रिंट किया, देन आप देख सकते हैं आपको आउटपुट क्या मिला, लाइक दिस टाइप से। यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से, इट मीन्स 3 पार्ट्स में एक लाइन को डिवाइड कर दिया। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस टोकनाइजेशन। देन सी वर्ड टोकनाइजेशन, सेम प्रोसेस, इंपोर्ट एनएलटीके लाइब्रेरी, फ्रॉम एनएलटीके लाइब्रेरी डॉट टोकनाइजेशन। हम टोकनाइजेशन यूज कर रहे हैं, बेस्ट टाइप ऑफ टोकनाइजेशन यूज कर रहे हैं, वर्ड टोकनाइजेशन यूज कर रहे हैं। सिंपल टेक्स्ट फॉर टोकनाइजेशन, टेक्स्ट, हम दिस इज योर इनपुट, व्हेन यू अप्लाई वर्ड टोकनाइजेशन, सी दिस इज योर आउटपुट। क्लियर। सी व्हेन यू अप्लाई कैरेक्टर टोकनाइजेशन, सेम प्रोसेस, all parts are same, only one difference, types of tokenization, it depends on you, आप कौन से टाइप का टोकनाइजेशन यूज कर रहे हो। क्लियर। whenever you create a generative AI project, वहां पे आप वर्ड टोकनाइजेशन यूज करेंगे। which type of tokenization, वर्ड टोकनाइजेशन। क्लियर। यस सर। Yes, sir. okay yes yes see this is your sentence tokenization, like Independence Day is one of the important festival for every Indian citizen. It is celebrated on the 15th of August each year। ये आपका एक पैराग्राफ है। क्लियर। Whenever you apply sentence tokenization, see Independence Day is one of the important festival for every Indian citizen। ये 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया, एक पैराग्राफ था इधर पे। क्लियर। Whenever you apply sentence tokenization, see आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ओके। वर्ड टोकनाइजेशन आई थिंक अभी आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। वर्ड टोकनाइजेशन क्लियर। दे ऑफर्स कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग, ऑल दीस थिंग। व्हेन यू अप्लाई वर्ड टोकनाइजेशन, सी दिस इज योर आउटपुट। क्लियर। बट
दो टर्म्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. फर्स्ट वन इज स्टेमिंग एंड सेकेंड वन इज लेमेटाइजेशन. क्लियर? Yes, sir. Anyone any idea what is stemming? सर स्टेमिंग में जैसे दो वर्ड हुआ ना सर, स्टडीज, तो वो IES को अलग कर देगा और स्टड को अलग कर देगा. पर लिमिटाइजेशन में करेंगे ना तो आप उसको स्टडी को STUDY स्टडी बना देगा, मतलब वाई अपनी तरफ से ऐड कर देगा, मीनिंगफुल वर्ड बना देगा, और फिर उसको Yes. जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको अलग कर देगा. Yes, lematization and stemming, only one difference. Lematization gives semantic meaning, but in case of stemming, sometimes stemming not gives semantic meaning. That's why we prefer lematization. See, stemming is used to normalize word into its base form. Suppose good, better, best. Clear? Good. It means इसका बेस जो बेस्ट है उसका बेस फॉर्म क्या है? गुड. क्लियर? और रूट फॉर्म क्या है? गुड. बट फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट्स, celebrated and celebrating. Clear? All these words are originated with a single root word called celebrate. The big problem with stemming is that sometimes it produces the root word which may not have any meaning. It means it not give any semantic meaning. For example, intelligence, intelligent and intelligently. But when you apply stemming, तो आपको उसने क्या प्रोडक्ट करके दिया है? इंटेलिजेंट, जो कि मीनिंगलेस है. क्लियर? क्या है? मीनिंगलेस है. इट मीन्स सपोज आपने एक पैराग्राफ दिया, वहां पे आपने गुड, बेटर, बेस्ट लिखा, बट व्हेन यू अप्लाई स्टेमिंग, अगर उससे बेस्ट से रिलेटेड कुछ उसको लाइक कुछ अच्छा से रिलेटेड उसको कोई सा वर्ड दिख रहा होगा तो वो प्रेडिक्ट करके दे देगा. इट डजंट मैटर इट गिव्स सेमेंटिक मीनिंग और नॉट. क्लियर? सपोज आपको थीसिस और एनी प्रोजेक्ट अगर आपको किसी फ्रेंड को शेयर करना है, देन यू अप्लाई स्टेमिंग. बट इन केस अगर आपको किसी ऑफिस, डीन ऑफिस, HOS सर और किसी को शेयर करना है, देन यू अप्लाई लेमेटाइजेशन. सी, लेमेटाइजेशन इज quite similar to the stemming. It is used to group different inflected forms of the word called lemma. The main difference between stemming and lematization is that it produces the root word which has a meaning. इसकी कोई मीनिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल, in lematization, the word intelligence, intelligent and intelligently. When you apply lematization, it gives intelligent. It means which has some meaning. Clear? Anyone any doubt regarding lematization and stemming? But अगर स्पीड की बात की जाए तो स्टेमिंग जल्दी वर्क करता है एज कंपेयर टू लेमेटाइजेशन, बट हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए रहता है. दैट्स व्हाई वी यूज लेमेटाइजेशन. क्लियर? Please say yes or no. Yes, sir. 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 Okay, Abhishek. Yes. Yes. Identifying stop words. सपोज आपको एक न्यूज़पेपर है. क्या है? एक न्यूज़पेपर मिला. 11:30 बजे क्लास अब कुछ उसमें ऐसा होगा, कुछ स्टॉप्स होंगे, कुछ क्वेश्चन मार्क होंगे, ऑल दीज थिंग्स होंगे. तो उनको भी हम रिमूव करते हैं मशीन को देने से पहले. ये आपके क्लीनिंग पार्ट में आता है NLP में. जैसे ही आप EDA पार्ट में करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में, फाइंड द मिसिंग वैल्यू, फाइंड द डुप्लीकेट्स करते हैं ना आप लोग क्लीनिंग. सेम थिंग आप इसमें करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में. क्लियर? स्पेलिंग करेक्शन, आइडेंटिफाइंग स्टॉप वर्ड्स, आइडेंटिफाइंग URL, ऑल दीज को हम रिमूव करते हैं. दैट इज कॉल्ड कम्स अंडर द NLP. किसके अंडर आता है? NLP के क्लीनिंग पार्ट के अंदर आता है. ये सब पूरा लाइक पैराग्राफ को क्लीन करना, क्वेश्चन मार्क हटाना, URL हटाना, स्पेलिंग करेक्शन सही करना. क्लियर? और स्टॉप वर्ड्स हटाना, ऑल दीज थिंग्स किसके अंदर आता है? NLP के क्लीनिंग पार्ट के अंदर. क्लियर? देन डिपेंडेंसी, ये भी आता. काउंट वेक्टराइजर, जो कि हम अभी एम्बेडिंग्स पढ़ेंगे. यहाँ पे एक टेक्निक होती है एम्बेडिंग्स, जो कि हम अभी कल नहीं पढ़ेंगे. करंट न्यूरल नेटवर्क पे हम पढ़ेंगे एम्बेडिंग्स. देन पार्ट ऑफ स्पीच में किसी का नाम है, किसी पैराग्राफ लाइक आपने जो एक स्टोरी ली है और न्यूज़पेपर है, किसी का नाम है, डिटेक्ट करेगा कि किसका नाम है. स्पीच स्टैंड फॉर पार्ट ऑफ स्पीच which includes noun, verb, adverb, adjective. It indicates that how a word functions with its meaning as well as grammatically.
with the sentence a word has one of or more part of speech based on the content in which it is used. Like for example, Google something on the internet. Then when you apply part of speech in natural language processing, then it detect this is your name. Like एक नाम है. Clear? Like name identity recognition, ये भी सेम थिंग वर्क करता है. Like लोकेशन को पता करेगा कि ये लोकेशन का नाम है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, या फिर किसी मूवी का नाम है. क्लियर? थ्रू NLP के हम सब कुछ पता कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. एंड Yes, sir. scikit-learn Yes, sir. आपकी एक लाइब्रेरी है जो कि यूज होती है आपकी मशीन लर्निंग में. इट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स इन पाइथन एंड नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट. लाइब्रेरी है व्हिच इज यूज्ड फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये लाइब्रेरी याद रखना. और इफ एनीवन आस्क व्हाट इज द पाइपलाइन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज processing and what is the difference between stemming and lemmatization, then I always say stemming gives semantic meaning, but lemmatization, when you use lemmatization, it does not give semantic meaning. Or but in case of, if anyone asks, in case of speed, where speed में compare की जाए stemming and lemmatization, then stemming अच्छा work करता है as compared to lemmatization. Clear? Please, Yes, sir. Naveen, sing, mute yourself. ओके, ये आपकी लाइब्रेरी है जो कि आप लोग खुद से भी देख सकते हैं. यहाँ पे आपका NLP का कंटेंट खत्म हुआ. जो हम एक थोड़े कुछ टेक्निक्स हैं लाइक वर्ड टू वेक्टर, एम्बेडिंग्स, बैक ऑफ ग्राम्स, तो ये हम टेक्निक्स पढ़ेंगे. तो ये हम पढ़ेंगे जब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे. क्लियर? ओके क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then thank you so much. If anyone ask anything regarding आज के सेशन के लिए, देन अभी पूछ सकता है, नहीं तो फिर अटेंडेंस ली जाए आपकी. यस, एनीवन एनी डाउट? आई थिंक डाउट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल पढ़ाया है. क्लियर? Yes, sir. ओके, तो आप ये तो नोट्स सर ये PDF को भेजेंगे आप? यस, मैं दोनों मुझे PDF शेयर पिछले करूंगा, बताया. टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बोथ PDF, डोंट वरी. ओके ओके सर. Okay, sir. ओके. Thank you, sir. अभी अटेंडेंस भी है, डोंट वरी. Hmm.